Good morning and Jai Hind, dear students. Welcome to class of Geography. Dear students, the chapter which is going on is Industries, Comparing Studies. So we are comparing different industries of India with the other countries of the world. We have already compared iron and steel industries. Then we compared the different industry that was cotton and textile industries. Today in this period we will discuss and we will compare about information industries, information and technology industries. So please be attentive, open your book, chapter is Industries Comparing Studies. So let's start this chapter. So dear students, this is chapter number 8, Industries Comparing Studies. And today we are going to compare and discuss information technology industry. So, the information technology industry is one of the fastest growing service industries in the world. ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है ना, ये दुनिया का सबसे फास्ट ग्रो करने वाला सर्विस इंडस्ट्रीज है. द इंडस्ट्री मेनली डील्स विद द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन. क्या होता है इस इंडस्ट्री में? ये मेनली डील करता है स्टोरेज, प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन का. ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन करने के काम आता है. So, information and technology industry is one of the fastest growing service industry in the world. So, the information technology professionals perform a variety of duties. ये जो IT professionals होते हैं जिनको information technology professional कहते हैं, they perform a variety of duties. क्या क्या करते हैं वो? Data management, networking, developing computer hardware, database and software design and management of the entire system. ये जो IT प्रोफेशनल्स हैं वो कई तरह के काम करते हैं, जैसे डेटा मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, डेवलपिंग कंप्यूटर हार्डवेयर, डेटाबेस एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन और पूरे सिस्टम को मैनेज करना. ये काम किसका है? ये काम है IT प्रोफेशनल्स का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स का. आफ्टर दैट, तो हमने जो इंडिया के लिए, आपको पता है कि इंडिया में आईटी सेक्टर जो सबसे बेहतर कंडीशन में है वो बेंगलुरु में है. तो हम इंडिया से बेंगलुरु को हम लोगों ने लिया है इस इंडस्ट्रीज को दुनिया के दूसरे कंट्री के इंडस्ट्रीज से कंपेयर करने के लिए. तो यू नो दैट बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका and it is located at an elevation of about 900 meters above the sea level on the Deccan Plateau. बेंगलुरु कर्नाटक का कैपिटल है. ये 900 मीटर अबव द मीन सी लेवल के एक एलिवेशन पे लोकेटेड है डेक्कन प्लेटो में. यहां का जो आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट है वो माइल्ड क्लाइमेट है. पूरे साल एक जैसा क्लाइमेट रहता है, माइल्ड क्लाइमेट रहता है. About 50 years ago, it was a sleepy town and was therefore regarded as pensioners' paradise. केवल 50 years पहले की बात करें तो इस शहर को स्लीपी टाउन कहते थे और इसको रिगार्ड करते थे पेंशनर्स पैराडाइज. यानी जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जो लोग एज्ड हो चुके हैं, उनके लिए इसको पैराडाइज की तरह से मानते थे और इसको स्लीपी टाउन कहते थे बेंगलुरु को. फिर ऐसा क्या हुआ कि ये आईटी हब हो गया, इंडिया का सबसे बड़ा आईटी हब हो गया. तो सिंस द 1950s many public sector high tech industries such as Bharat Electronics Limited, BEL, Hindustan Aeronautics Limited, HAL, Indian Telephone Electrical Industries Limited, ITI
and Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) were established in Bengaluru by the government of India. क्या किया? 1950 से बहुत सारे पब्लिक सेक्टर हाईटेक इंडस्ट्रीज, मैं पब्लिक सेक्टर कह रहा हूं, इसका मतलब वो इंडस्ट्रीज जिसका ओनर या कंट्रोलर वो कौन है? वो खुद गवर्नमेंट है. If the owner or controller is government, then those industries are known as public sector industries. So from 1950s, many public sector high technology industries like Bharat Electronics Limited, Hindustan Aeronautics Limited, Indian Telephone Electric Industries Limited and Bharat Heavy Electricals Limited. They were established in Bengaluru by the government. ये सारे जो हाईटेक इंडस्ट्रीज हैं पब्लिक सेक्टर के, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने बेंगलुरु में स्टेब्लिश किया. एंड दिस हैज मेड इट एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर इन द कंट्री. और इन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को स्टेब्लिश करने के बाद ये जो शहर है ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर हो गया देश का. आफ्टर दैट, in the last 20 years, many private sector electronic companies have been set up here. पिछले 20 सालों में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज जो हैं उन्होंने अपने जो पूरे सेटअप यहां पे किए हैं. द इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर इंडस्ट्रीज आर क्लोजली रिलेटेड. इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर इंडस्ट्रीज वो दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज रिलेशन है दोनों का. तो क्या हुआ? बेंगलुरु हैज बिकम द की लोकेशन फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. क्योंकि वहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज ने अपने सेटअप किए, इसलिए बेंगलुरु क्या हो गया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए की लोकेशन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन हो गया. द सिटी एंजॉयज द फॉलोइंग एडवांटेजेस फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री. सिटी में इस इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. ठीक है ना? वो कौन कौन से हैं? चलो उस पर डिस्कस करते हैं. प्रेजेंस ऑफ मेनी हाईटेक इंडस्ट्रीज. मैंने बताया कि पहले से वहां पे इवन पब्लिक सेक्टर के बहुत सारे हाईटेक इंडस्ट्रीज ऑलरेडी वहां पर हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी हाईटेक इंडस्ट्रीज वहां पे ऑलरेडी हैं. हाईली एजुकेटेड एंड स्किल्ड लेबर फोर्स. बेंगलुरु में आपको जो लेबर फोर्स है वो हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड दोनों तरह के मिल जाएंगे. साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आर वेल डेवलप्ड इन बेंगलुरु. बेंगलुरु में साइंस, इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी जो है बहुत अच्छे कंडीशन में, बहुत वेल डेवलप्ड है. उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. वहां पर इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से यू विल गेट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. So there are many advantages that people are getting to locate or to establish their industries. So the above advantages provided an environment in which technology and information were shared through collaboration or through rotation of labor. तो ये जो advantages है ना, इसने एक ऐसा environment बना दिया जहां पर टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन वो कोलैबोरेशन के थ्रू शेयर किए जा सकते हैं, लेबर के रोटेशन के थ्रू शेयर किए जा सकते हैं. और आपको पता है कि एज द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रोडक्शन ऑफ हार्डवेयर. ये हमेशा याद रखिए कि सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हार्डवेयर के प्रोडक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसीलिए बेंगलुरु हैज डेवलप्ड इनटू ए सेंटर फॉर द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. तो बेंगलुरु एक ऐसा सेंटर बन गया जहां पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को बहुत शानदार बेस मिल गया. और आपको पता है कि द कर्नाटका गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट टू अनाउंस एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी इन 1992. इंडिया में कर्नाटका गवर्नमेंट वो पहली गवर्नमेंट है जिसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी जो है 1992 में अनाउंस किया. So the rapid development of information technology industry or IT industry attract many multinational companies to set up their offices there. तो ये जो डेवलपमेंट हुआ, रैपिड डेवलपमेंट हुआ आईटी इंडस्ट्री का, इसने दुनिया के बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को अट्रैक्ट किया
कि वो यहां आए और अपने ऑफिसेस को सेटअप करें। यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया, मल्टीनेशनल कंपनीज। बहुत शॉर्ट में इसको बता दूं कि मल्टीनेशनल कंपनीज आर दोज कंपनीज which have control on production in more than one country। मल्टीनेशनल कंपनीज वो कंपनीज होंगे जिसका दुनिया के कई देशों में वहां के प्रोडक्शन पे कंट्रोल हो। तो बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो अट्रैक्ट हुए कि वो भी आए और बेंगलुरु में अपने ऑफिसेज ओपन करें। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स यूएसए selected Bengaluru to develop their base for the Asia Pacific region। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की, उसने बेंगलुरु को सेलेक्ट किया कि वो एशिया पैसिफिक रीजन के लिए उसने बेंगलुरु को बेस माना, वहां पे उन्होंने अपना सारा सेटअप किया। Their center at Bengaluru had a direct satellite link with its headquarters in Dallas, USA। उनका जो बेंगलुरु में सेंटर है उसका डायरेक्ट सैटेलाइट लिंक है इसके हेडक्वार्टर से, इस कंपनी के हेडक्वार्टर से, जो कि डैलस यूएसए में है। और ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ना, इट हेल्प द डोमेस्टिक सॉफ्टवेयर कंपनीज टू वर्क फॉर डिस्टेंट कस्टमर्स। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन का क्या फायदा हुआ कि जो हमारे सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, हमारे देश के सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं या डोमेस्टिक सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, उनको फायदा हुआ कि वो डिस्टेंट जो दूर रहने वाले कस्टमर्स हैं उनके लिए वो काम कर सके। और ये फायदा ये इनेबल कैसे हुआ? सैटेलाइट कम्युनिकेशन की वजह से। उसके बाद इन 1980 द कर्नाटका गवर्नमेंट डेवलप्ड एन इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी अबाउट 18 किलोमीटर आउटसाइड बेंगलुरु। 1980 में कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी बनाई बेंगलुरु से 18 किलोमीटर दूर पर, और इसी चीज ने बेंगलुरु को द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बना दिया। इन 1989 हेवलेट पैकर्ड एचपी, आपने सुना होगा बहुत बड़ी कंपनी है, ऑल्सो सेटअप देयर यूनिट हियर। 1989 में एचपी ने अपना यूनिट सेटअप किया। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड सच एज IBM, Oracle Corporation, Micro Focus and Fujitsu India are now based in Bengaluru। ये दुनिया की बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, IBM, Oracle Corporation, Micro Focus, Fujitsu, इन्होंने अपना बेस बेंगलुरु में बनाया। HP ने ऑलरेडी मैंने बता दिया HP के बारे में। तो दुनिया की बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज ने अपना बेस बेंगलुरु में बनाया। Bengaluru has now surpassed Mumbai, the first software center in India। बेंगलुरु ने मुंबई को सरपास कर दिया, जो कि इंडिया का पहला सॉफ्टवेयर सेंटर था। अब बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनको शॉर्ट में MNCs कहते हैं, लाइक सीमेंस, मोटोरोला, सिटीकॉर्प, गेट मच ऑफ देयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क डन इन बेंगलुरु। इन कंपनियों का ज्यादातर काम जो है अब बेंगलुरु में होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी मैंने बताया था, जो बेंगलुरु से 18 किलोमीटर दूर पे सेटअप किया गया है, सो द इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रोवाइड्स ऑल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक सिटी में वो सारे फैसिलिटीज हैं जो आईटी इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। इन द लास्ट 10 years बेंगलुरु हैज बिकम एशियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी। पिछले 10 सालों में बेंगलुरु एशिया का सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला सिटी बन गया ड्यू टू दिस इंडस्ट्री। द सिटी हैज एक्सपीरियंस्ड रैपिड ग्रोथ एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बेंगलुरु का नाम अब पूरे दुनिया में जो है वो लिया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। इस शहर को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल गया। Although many new centers of information technology are being developed in, बहुत सारे अलग अलग न्यू सेंटर्स बन रहे हैं आईटी सेक्टर के लिए, आईटी इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कि दिल्ली में, गुरुग्राम में, नोएडा, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, कोची एंड छत्तीसगढ़। इन सब जगहों पे जो है आईटी इंडस्ट्री के लिए नए नए सेंटर्स बन रहे हैं, लेकिन बेंगलुरु अभी भी सबको लीड कर रहा है। क्लियर?
तो अब जो है बेंगलुरु के बारे में हम लोगों ने जाना. नाउ वी हैव टू कंपेयर इट टू सिलिकॉन वैली. दुनिया का सबसे बड़ा आईटी हब. बेंगलुरु को भी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं. तो अब हम सिलिकॉन वैली की बात करेंगे जो कि यूएसए में है. द नेम सिलिकॉन वैली वाज फर्स्ट यूज्ड बाय डॉन हेफलर, अ जर्नलिस्ट, इन अ कपल ऑफ आर्टिकल्स इन द इलेक्ट्रॉनिक न्यूज. ये जो सिलिकॉन वैली जो है सबसे पहले डॉन हेफलर ने यूज किया. एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कई सारे आर्टिकल्स लिखे इलेक्ट्रॉनिक न्यूज पे, उसमें उन्होंने सिलिकॉन वैली यूज किया. Originally, the term Silicon Valley was used to describe the Santa Clara County in the state of California in USA. Originally, Silicon Valley जो है वो Santa Clara Country जो कि स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया में है यूएसए में, उसके लिए यूज किया गया ओरिजिनली सिलिकॉन वैली. डॉक्टर विलियम शॉकले developed a transistor at the Bell Laboratory. डॉक्टर विलियम शॉकले ने क्या किया? उन्होंने बेल लेबोरेटरी में एक ट्रांजिस्टर को डेवलप किया. Initially, Shockley wanted to use germanium as a semi-conducting material, while others in his group wanted silicon. शुरुआत में शॉकली चाहते थे कि सेमी कंडक्टिंग मटेरियल के रूप में जर्मेनियम को यूज करें, लेकिन उनके ग्रुप के जो दूसरे साथी थे वो चाहते थे कि सिलिकॉन यूज हो. और फाइनली सिलिकॉन वाज फाउंड मोस्ट सुटेबल. बाद में सिलिकॉन को सबसे ज्यादा सुटेबल मटेरियल माना गया, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल माना गया. देयरफॉर ही यूज्ड सिलिकॉन इन द ट्रांजिस्टर. उन्होंने ट्रांजिस्टर में सिलिकॉन यूज किया. एंड दिस इज हाउ द नेम सिलिकॉन वैली वाज गिवन. और ये ही स्टोरी है कि नाम जो है सिलिकॉन वैली दिया गया. द सिलिकॉन वैली इज सराउंडेड बाय द सैन फ्रांसिस्को बे ऑन द ईस्ट एंड सांता क्रूज माउंटेन्स ऑन द वेस्ट एंड द पैसिफिक कोस्ट रेंजेस ऑन द साउथ ईस्ट. ये जो सिलिकॉन वैली है ना, ये ईस्ट में सैन फ्रांसिस्को बे, वेस्ट में सांता क्रूज माउंटेन्स और साउथ ईस्ट में पैसिफिक कोस्ट रेंजेस से घिरा हुआ है. इट इज सराउंडेड. दिस एरिया वाज अ रिच एग्रीकल्चरल रीजन एंड वाज पॉपुलर फॉर सिट्रस फ्रूट्स. ये जो एरिया था ये रिच एग्रीकल्चरल रीजन था और अपने सिट्रस फ्रूट्स के लिए बहुत पॉपुलर था. So, the state of California, with mild wet winters and hot dry summers, has always attracted people from all parts of the world. ये जो कैलिफोर्निया है, स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया है, जहां पर क्लाइमेट जो है माइल्ड वेट विंटर्स एंड हॉट ड्राई समर्स है, इसने दुनिया के सभी पार्ट से लोगों को अट्रैक्ट किया. But in last 40 years, or we can say 60 years, California has come into the limelight because of the Silicon Valley. California limelight में आया Silicon Valley की वजह से. The development of the Silicon Valley is attributed to the Stanford University. ये जो सिलिकॉन वैली का डेवलपमेंट हुआ ना, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वजह से हुआ. कैसे? तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो यूएस डिफेंस प्रोग्राम्स था इन द फील्ड ऑफ एयर स्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्प द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन द सिलिकॉन वैली. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूएस का डिफेंस प्रोग्राम्स था एयर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, इसने किस चीज में हेल्प किया? इसने वहां पर कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प किया जो कि सिलिकॉन वैली में था. तो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टैनफोर्ड इंडस्ट्रियल पार्क इन 1951 प्लेड अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द सिलिकॉन वैली. 1951 में
द स्टैनफोर्ड इंडस्ट्रियल पार्क इस्टेब्लिश किया गया और इसी ने सिलिकॉन वैली के डेवलपमेंट में की रोल प्ले किया। और पता है ये जो पार्क है द स्टैनफोर्ड इंडस्ट्रियल पार्क, इट इज अ सेंटर ऑफ हाई टेक्नोलॉजी का सेंटर है ये। So a large number of small towns developed high technical structures to meet the increasing needs of the industry in and around the Silicon Valley. बहुत सारे जो छोटे छोटे टाउन्स थे वो हाई टेक्निकल स्ट्रक्चर्स के रूप में डेवलप हो गए, जिससे कि जो भी नीड्स है इंडस्ट्रीज का, है ना, जो भी नीड्स है उसको मीट करने के लिए सिलिकॉन वैली के आसपास वो जो है डेवलप कर गए। तो प्रोफेसर फ्रेडरिक थर्मन, who was a Stanford graduate, is known as the father of Silicon Valley. प्रोफेसर फ्रेडरिक थर्मन जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ही ग्रेजुएट थे, उनको सिलिकॉन वैली का फादर माना जाता है और उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस सिलिकॉन वैली के डेवलपमेंट में। सो प्रोफेसर फ्रेडरिक थर्मन का नाम याद रखिएगा। ही इज नोन एज द फादर ऑफ सिलिकॉन वैली। सो प्रोफेसर फ्रेडरिक थर्मन आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी टू स्टार्ट न्यू यूनिट्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन दिस रीजन। प्रोफेसर फ्रेडरिक थर्मन ने क्या किया, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स से कहा, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे, उनसे कहा कि एक नया यूनिट स्टार्ट करने को जिससे कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो सके उस रीजन में। सो ही आस्क्ड द यूनिवर्सिटी टू लीज आउट लैंड टू न्यू ग्रेजुएट्स सो दैट देयर रिसर्च वर्क विलियम शॉकले कुड हेल्प इन न्यू प्रोजेक्ट्स। उन्होंने इंडस्ट्री से अपने यूनिवर्सिटी से कहा कि उनको लैंड लीज आउट पे दें टू न्यू ग्रेजुएट्स, जो नए ग्रेजुएट्स वहां से हैं, जिससे कि उनका जो रिसर्च वर्क है, ठीक है ना, वो उनके रिसर्च वर्क में जो विलियम शॉकले है वो सब मदद कर सके, नए प्रोजेक्ट बनाने में मदद कर सके। तो यूनिवर्सिटी ने उनको लीज पे लैंड अवेलेबल करा दिया। Fairchild was the first company to produce integrated circuits on a large scale, while Intel, आपने Intel का नाम सुना होगा, बहुत बड़ी कंपनी है, in 1973 introduced the Stanford Central Processing Unit CPU। Fairchild वो पहली कंपनी है जिसने इंटीग्रेटेड सर्किट को लार्ज स्केल पे बनाना शुरू किया, जबकि इंटेल, आप अपने लैपटॉप में भी देखते होंगे इंटेल का लोगो लगा होता है। तो इंटेल 1973 में उसने स्टैनफोर्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग अब कॉमनली सीपीयू कहते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया दुनिया को। दिस वॉज फॉलोड बाय द एरा ऑफ होम कंप्यूटर्स। उसके बाद होम कंप्यूटर्स आए। इन 1982 IBM started manufacturing personal computers, और 1982 में IBM ने पर्सनल कंप्यूटर्स बनाना शुरू कर दिया, मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आप DOS कहते हैं, DOS, इट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया। और फिर 1990 में हेवलेट पैकर्ड, जिसको HP कहते हैं, became the largest PC manufacturer in the world। 1990s में HP जो है दुनिया का सबसे बड़ा PC, पर्सनल कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर हो गया दुनिया में। Later, the industrial and research activities in the Silicon Valley shifted to the development of software and internet। तो जो इंडस्ट्रियल और रिसर्च एक्टिविटीज था सिलिकॉन वैली में, वो किस चीज में शिफ्ट हो गया, वो सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के डेवलपमेंट में शिफ्ट हो गया। और यही जो चेंज हुआ, दिस चेंज द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसने ICT के वर्ल्ड को चेंज कर दिया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड को चेंज कर दिया। Silicon Valley survived this new revolution as many companies
such as the Sun Microsystems, Cisco Systems and Netscape Communication started using internet-based technology. तो सिलिकॉन वैली सर्वाइव दिस न्यू रेवोल्यूशन, क्योंकि बहुत सारे कंपनियों ने जैसे सन माइक्रोसिस्टम, सिस्को सिस्टम्स एंड नेटस्केप कम्युनिकेशन ने इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो रेवोल्यूशन आ गया इस सेक्टर में। Thousands of high technology companies now have their head offices in the Silicon Valley. हजारों हाईटेक कंपनीज जो हैं उनका हेड ऑफिस सिलिकॉन वैली में है। The personal computer and software industry have helped Valley develop into an industrial giant. ये जो पर्सनल कंप्यूटर है और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसने सिलिकॉन वैली को डेवलप कर दिया एक इंडस्ट्रियल जाइंट के रूप में। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के लिए हमने दुनिया के दो शहरों को, दो इंडस्ट्रियल सेंटर को कंपेयर किया। कौन कौन? एक था इंडिया का बेंगलुरु और दूसरा यूएसए का सिलिकॉन वैली। सो नाउ इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय स्टूडेंट्स, प्लीज रीड ऑल द टॉपिक्स केयरफुली. So that's all for today. We will meet in next class with new chapter. Till then, thank you and have a nice day.